Hello friends, how are you doing? Today I'm going to talk to my friends from my teaching fraternity. We all have high expectations from the teachers. कि teachers should do that, teachers should not do that. Teachers are the nation builders. But have we ever tried to think about their well-being, to put in our level best efforts so that they can give their best? तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो है टीचर्स की वेलबींग, टीचर्स की मेंटल हेल्थ। क्योंकि आई फील एंड बिलीव इफ़ द टीचर्स आर स्ट्रेस्ड आउट, देयर स्टूडेंट्स, देयर क्लासरूम इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेस्ड आउट। तो टीचर्स के स्ट्रेस के क्या रीज़न्स हैं एंड हाउ कैन वी ओवरकम दोज रीज़न्स? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एंड अंडरस्टैंड। तो इसको करने के लिए लेट्स वॉच माय वीडियो क्लासरूम मैनेजमेंट पार्ट 7। मैंने First of all, you have to be very organized. Before entering your classroom, while entering your classroom, or after you have entered your classroom, you have to be very confident, very organized. You should know what you are carrying to the classroom, why are you carrying it, and how you are going to use it. If you juggle with the things in front of your students, if you don't know how to use them, where to use them, how to use the or operate the smart boards, if you don't have a chalk, if you don't have a duster, mind my words, your students are not going to take you seriously, and they may even go to the extent of making fun of you. So your body language, your face expressions is should be able to give your impression as a very confident teacher to the students, because there is one saying in English, first impression is the last impression. So this first impression of yours is very important in establishing you as a good teacher in front of your students. Number two, you should have a thorough knowledge of your subject, as well as you should be enthusiastic about your subject. समटाइम्स वी कंप्लेन कि बच्चे हमें पढ़ाने नहीं देते, हमें परेशान करते हैं, दिस एंड दैट, बट आई वुड लाइक टू डिफर विद यू हियर। जब आप प्रिपेयर्ड नहीं अपने सब्जेक्ट के लिए, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तभी ऐसा होता है। कॉन्फिडेंस के बारे में टॉपिक 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पॉइंट 1 में प्रेपरेशन प्लेज अ ग्रेट रोल। अगर आपको 40 मिनट्स का पीरियड है और आपको ये नहीं पता कि आपने कितना टाइम सब्जेक्ट या टॉपिक इंट्रोडक्शन के लिए रखा, कितना टाइम आप उसको ट्रांजैक्ट या ट्रांसफर करने में लगाएंगी, और कितना टाइम आपने रिकैपिचुलेशन के लिए रखा है, देन यू विल डेफिनेटली बी कटिंग अ सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स। बट अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपको पता है आपने ये तीनों काम कितने टाइम में करने हैं, सो योर स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली टेक इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट और टॉपिक। जनरली क्या होता है कि हम में से सभी ज्यादातर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होती है या हमने एक्वायर की होती है, लेकिन हम उसको बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक ट्रांजैक्ट या ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपकी कॉम्पिटेंस इसी में है कि आप उसको उन तक ट्रांजैक्ट कर पाए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कॉन्फिडेंट होंगे क्लास में। नंबर 2, आप प्रिपेयर्ड होकर क्लासरूम में जाए। तो इस वीडियो से हम समझ सकते हैं कि टीचर्स के स्ट्रेस में जाने के 3 मेन रीजंस हैं। नंबर 1, इफ़ दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड while entering the class, when they enter the class and after they have entered the class। क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं हैं, इफ़ दे आर नॉट able to take care of the things which they should carry to the classrooms and how they should carry to the classrooms, they will cut a sorry figure in the eyes of their students, and which will level up their stress। क्योंकि बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, कीन ऑब्जर्वेंट होते हैं, एंड जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप क्लासरूम में कैसे एंटर कर रहे हैं, क्लासरूम में एंटर करने के बाद आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। अगर आपने क्लासरूम में जैसे इस वीडियो में सुना
if you're not organized with your things, if you are making them fall this way or that way, and if you are fumbling, if you are not clear with your introductory or opening sentences, so definitely you are going to cut a sorry figure in the eyes of your students and they may start making fun of you. उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा. सेकेंड रीज़न है इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. आप चाहे कितनी भी एक्सपीरियंस्ड हों, आपको कितने ही कॉम्पिटेंस हो अपने सब्जेक्ट पर, आपको प्रिपेयर्ड होकर क्लासरूम में जाना है, क्योंकि दिस प्रिपेयर्डनेस विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड दिस कॉन्फिडेंस will reflect from your face expressions, from your body language, and this will not only help you deliver but will help you connect with your students and will lower your stress levels. तो ये 2 रीज़न्स तो हैं जो इस वीडियो से हम समझ सकते हैं टीचर्स के स्ट्रेस में जाने के. थर्ड रीज़न कुड बी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल. अगर कोई पर्सनल रीज़न है, डोमेस्टिक रीज़न है, देन यू शुड नॉट कैरी इट टू योर क्लासरूम, यू शुड लीव इट एट होम. और अगर प्रोफेशनल है, विद some of the school authorities or your colleagues, then you should try to resolve it at the earliest by having open heart discussions with the concerned persons. And if you are not able to resolve it for whatever reasons, sometimes reasons may be beyond your control, in that case you should try to change your job at the earliest. क्योंकि आपको बच्चों की टीचिंग, अल्टीमेटली आपका बेसिक जॉब क्या है, टीचिंग. और अगर आप उस टीचिंग के साथ ही जस्टिस नहीं कर पा रही हैं फॉर वट एवर रीजन्स, देन यू शुड नॉट कंटिन्यू इन दैट पर्टिकुलर स्कूल, क्योंकि इट विल अफेक्ट योर एफिशिएंसी. एंड माइंड इट, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि स्टूडेंट्स will always mirror your whatever state of mind, and a stressed teacher is always going to create or produce a stressed classroom. ये बहुत सिंपल सा साइकोलॉजिकल बात है जो anyone can understand. तो आपको you have to try your level best to go to classroom in a very happy and healthy state of mind. Only then you can deliver and you can do justice with your teaching. इसके लिए मैं स्कूल अथॉरिटीज़ को भी सजेशन देना चाहूँगी कि वो टीचर्स को एडिक्वेट ब्रेक दें. उनका जो टाइम टेबल है वो इस तरह से फ्रेम किया जाए, इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए दैट दे हैव sufficient free periods in between their teaching periods so that they can relax. और अगर पॉसिबल हो, स्कूल्स में सभी में योगा रूम्स तो होते ही हैं, एक मेडिटेशन रूम भी अगर बना दिया जाए where teachers can go and meditate for a while, can stretch their limbs, their arms and their legs so as to give some relief to their body, mind and soul. ऑफ कोर्स इससे अथॉरिटीज़ पर, स्कूल अथॉरिटीज़ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, लेकिन अगर टीचर्स ओवर बर्डनड होंगी और वो अपना वैसा आउटपुट नहीं दे पाएंगी जो वो दे सकती हैं, अगर वो स्ट्रेस फ्री होकर क्लासरूम्स में जाएं, तो आपके स्कूल की, आपके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगी. उसके लिए अगर आपको 1-2 टीचर्स एक्स्ट्रा अपॉइंट करने पड़े, आई थिंक स्कूल शुड नॉट माइंड डूइंग दैट. उससे अल्टीमेटली आपके स्कूल का रिज़ल्ट इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपके टीचर्स की एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, वो अपना बेस्ट देने में सक्षम हो पाएंगी अगर उनको एडिक्वेट ब्रेक, रेस्ट मिलता है इन बिटवीन टीचिंग पीरियड्स. तो ये आप करके देखिए एंड इट विल डेफिनेटली फेच यू पॉजिटिव रिजल्ट्स. और टीचर्स जो हैं अपने स्ट्रेस को
बस्ट करने के लिए, हैंडल करने के लिए, प्रोफेशनल स्ट्रेस ड्यू टू प्रोफेशनल रीजंस, दे कैन शेयर, डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद सम ऑफ देयर सीनियर्स whom they can trust, और उनका वैल्यूएबल गाइडेंस और ओपिनियन लेकर भी वो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आप ही के हाथ में है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोबडी एल्स इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। और अगर आपने अपना आउटपुट, अपना प्रोफेशनल आउटपुट इम्प्रूव करना है for the betterment of your students first and then for your own betterment, so you have to work on your mental health for the reasons which are within your control. For the reasons which are beyond your control, as I already said, then you should not continue in such a school for a much longer time, because that will keep affecting your mental health, and soon you may reach a stage when you may find it difficult to take care of your mental health. So it's better you take care of it at the right time. Hope you agree with me. अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने और टीचिंग फ्रेटर्निटी के मेंबर से इसको शेयर करिए, एंड काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल so as to watch more of such videos. Thank you. God bless you.